Welcome to the Coffee with CEOs session. Now today we have another inspiring and young success story. Today we have a very special guest, Mr. Afif Rashid. He is the CEO of Afif Zara Packaging. Sir, thank you so much for your kind words and support, sir. Thank you. जी सर, अफीफ साहब बताइएगा माशाल्लाह कैसी रही आपकी जर्नी और हाउ यू एंडेड एज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी. मेरी जर्नी alhamdulillah I've been in professional life for last almost 9 years. Initially I started working हमारी franchise थी एक Mrs. Fields और TCBY के नाम से. So I started working with that and I was very much involved in the operations. Slowly and gradually I shifted towards our main business, which was printing and packaging. I spent around 2.5 years with my dad and learned a lot from him. Or last 4 years I'm running my own business, which is Afif Zara Packages. We deal in the corrugated carton business. We make pizza boxes, master cartons for all the big brands you can name: Pepsi, Coke, Domino's, Pizza Hut, Papa John's. So we supply all the multinationals with these boxes. Oh, great, sir. So, sir, moving forward, थोड़ा सा अभी रिसेंटली जैसे इन्फ्लेशन ने हिट किया और काफ़ी डॉलर प्राइसेस हो गई, तो आपका तो मेन जो बिजनेस था पेपर था उसकी कॉस्टिंग भी हाई हो गई, तो इस पर ब्रीफिंग दें. डेफिनेटली हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट इन लास्ट 1 year 1.5 year ऑलमोस्ट डबल हो गई है. हमारी रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो लास्ट 1.5 year में इट्स ऑलमोस्ट 40% अप. तो इट्स बीन अ चैलेंजिंग टाइम, लेकिन कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं. ईदर वी आर इन पाकिस्तान और वी आर इन एनी अदर कंट्री. जो इन्फ्लेशन है उसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया हुआ है. तो just keeping up with that and trying to work as hard as possible to overcome these challenges. Okay, sir. Other than inflation, what is the key challenges of, especially in your industry, and what is the opportunities? देखिए, key challenges, the main challenge is stability in raw material pricing, stability in the availability of raw material. जब भी आपके बिजनेस के अंदर आपकी सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये आपको हर वक्त के लिए आपके लिए चैलेंज है. हमें कंटेनर्स के अंदर बहुत चैलेंजेस आए बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग पिज़्ज़ा बॉक्सेस टू दुबई, कतर, यूके. तो हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है, जो एकदम से प्राइस इंक्रीज़ आया फ्रेट के अंदर, दैट वाज अ बिग चैलेंज टू ओवरकम दैट. और वो कस्टमर को टाइम लगा उस प्राइस को एब्जॉर्ब करने, प्राइस इंक्रीज़ को एब्जॉर्ब करने में. बट द चैलेंजेस जो कंटेनर्स हैं वो आगे पुश फॉरवर्ड हो जाते हैं. टाइमिंग्स उनकी अभी आजकल इतनी अच्छी नहीं है. कंटेनर पे वेसल्स पे शॉर्टेज बहुत आती है. तो हमारी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द क्लाइंट, उसमें बड़ा इशू आता है, क्योंकि वी कैन नॉट 100% कमिट टू आवर कस्टमर कि जी इस दिन आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, बिकॉज वी आर वेरी अनसर्टन. हमें पोर्ट तक पहुंचाना तो इट्स अंडर आवर हैंड्स, बट पोर्ट पे पहुंचने के बाद अब वेसल क्या करती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग टू हैंडल दो सिचुएशंस, बट eventually hopefully it will get resolved very soon. So, sir, how many employees in your company? We have around 100 employees. Management is around of 10 people, and we have around 90 staff who's working on the floor in the production facility. Okay, do you have female staff also? Definitely we do have female staff as well. We have female staff in marketing, we have female staff in HR. Obviously we do not have a female staff in our production as of now, but in management we do have female staff. Okay, sir. Any remarkable achievement, Afif Saab, you proud? Your company, you must be proud. Definitely we are, you can say we are one of the few exporters in Pakistan who are exporting paper products out of value added paper products to Dubai, to Doha, to UK, and I believe in corrugated business you won't find any other big player exporting to these countries, whereas some of the big textile companies are importing cartons from Dubai or Saudi Arabia, and we are exporting them. So it's a very big achievement for us to capture those markets. माशाल्लाह सर. फिर से थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड, कोविड आ गया, तो व्हाट इज द की लर्निंग you learned from the COVID?
कोविड वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था. लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट टाइम. कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़े. अपने आप को एवेलुएट करने का अच्छा टाइम था कि हम इतने मुश्किल टाइम पे हाउ डू वी सस्टेन, हाउ डू वी हैव ग्रोथ इन दैट टाइम. तो इट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस. बहुत सारे मार्केट के जो नॉर्म्स थे वो चेंज हुए ड्यूरिंग द कोविड. कैश बेसिस पे ज़्यादा काम होने लगा. जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी वो कम हुई. जेन्युइन बायर्स ज़्यादा थे, जो स्टॉकिंग वाले बायर्स थे वो कम थे. तो इट वाज अ डिफरेंट. Layoffs वगैरह तो हुई हम. Unfortunately, that was one of the most difficult decisions I had to take, because for the stability of the business, to sustain our company, we had to lay off some of our employees. But I think most after COVID, when we gained our momentum back, we have almost hired as many people back जितने हमने lay off किए थे. Okay, so what is the what is leadership to you, and what are the three challenges as a CEO? Leadership for me is man management. So the biggest challenge in the business, I believe, is man management. How well is your team? How confident are you about your team? Because you can have all the machinery and raw material with you, and if you do not have a good team who can convert those raw material and machinery into a good product with quality and with low cost, then it's of no use if you don't have a team. So a good team is very important, and a good team takes you long. क्या देखना चाहते हैं आप नेक्स्ट जनरेशन यंग सीईओ या मैनेजर्स में? देखिए, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, और यू शुड बी वेरी गुड विद योर टेक्निकल स्टाफ. आप जिस इंडस्ट्री में हैं, यू शुड नो द इंडस्ट्री, यू शुड नो द प्रोडक्ट यू आर मेकिंग, यू शुड नो द प्रोडक्ट फ्रॉम विच यू आर वैल्यू एडिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो अगर मैं कॉर्गेशन इंडस्ट्री में हूँ और अगर मैं अपना पेपर ही नहीं समझता, तो मैं ना क्लाइंट से जाके सही से बात कर सकता हूँ और ना मैं अपने लेबर से सही से बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई विल बी ब्लैंक. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस इंडस्ट्री में भी हों, हमें अपने रॉ मटेरियल के बारे में, अपने फिनिश गुड के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एंड देन लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी. हम कुछ भी कर लें, इफ़ वी डोंट हैव एन इंटेग्रिटी, अगर हम अपने क्लाइंट्स के साथ ही बेईमानी करेंगे, तो वी कैन नेवर सक्सीड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव एन इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी को हमें एम्बेड करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सिर्फ ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट इंटेग्रिटी हो, इंटेग्रिटी लोअर स्टाफ में भी होनी चाहिए कि यार मैं अगर इस टाइम पे मेरा वर्किंग आवर्स हैं, तो मैं उसके अंदर पूरा अपना टाइम को यूटिलाइज करूँ, मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन दूँ. इसका फ़ायदा लेबर को ही होता है ना. ओवर टाइम भी लगेगा तो उनका फ़ायदा है. अगर वो जल्दी प्रोडक्शन करके ज़्यादा करेंगे, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, तो इवेंचुअली लेबर की भी ग्रोथ होती है. तो इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने पूरे सिस्टम में डालनी चाहिए, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फाइड रख सकें. ग्रेट सर. अफीफ सर, थोड़ा सा बताइए कि नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ देख रहे हैं अफीफ ज़ारा पैकेजेस को? क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के आपके? हमारे अच्छे प्लान्स हैं इस सेंस में कि वी आर, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अराउंड ऑन अ 60% ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर, एंड द नेक्स्ट ईयर वी आर अगेन targeting around another 70% growth from this year. So we have a target to be one of the best corrugated companies in Karachi right now. We have a lot of competition from many companies in Punjab like Century and Bulle Shah, and they are huge. So our motive is to, we can at some time we can compete to them, because they are a role model. We can look up to them, the way they are working, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग करते हैं, हाउ सेटिस्फाइड देयर एम्प्लॉयज़ आर बाय वर्किंग इन दोस इंडस्ट्रीज. सो इट्स कमेंडेबल एंड वी लुक फॉरवर्ड टू competing with them. माशाल्लाह सर, जैसे ग्रोथ रेट है, तो डू यू आर प्लानिंग टू अनदर फैक्ट्री इन कमिंग 3 to 4 years? Inshallah, we have looked into this. It depends how the industry grows. अगर पंजाब में ज़्यादा ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, तो वी कैन लुक इनटू दैट.
एंड वी कैन लुक इनटू कराची एज वेल, बिकॉज कराची का आज भी वॉल्यूम जो है वो कोई एक कोरोगेटर तो पूरा नहीं कर सकता. इवन पंजाब से बहुत सारे कोरोगेटेड कार्टन्स आते हैं. वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ कोरोगेटेड कार्टन्स. सो Karachi is not a small market, it's a big, huge market, so there is a potential for many corrugators in Karachi. So that will be a decision of the board, and when we are up to that, we'll have to figure out which is the best place. Okay. So any CS activity you want to highlight from your company? CSR हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं. इधर इफ इट्स देयर वेडिंग्स और एनी हेल्थ इशू इन देयर फैमिली. सो सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं, अगर उनके पेरेंट्स भी होते हैं या उनके इमीडिएट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वी डू अकोमोडेट देम ऑन अ पर्सनल लेवल. CSR उसके अलावा हम अपने जो भी हमारे मिनिमम वेज के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वी गिव देम राशन 1 महीने का हम उनको दे रहे होते हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट दैट्स नॉट ऑन पेपर, बट वी on our individual basis we always help our employees. MashaAllah, sir. Sir, last 3-4 questions हैं. Who's your inspiration role model? Who's my inspiration role model? You can say it's my father. जो जिस तरह उन्होंने from the beginning, जिस तरह उन्होंने अपना business start किया from a very small scale, आज वो उसको इतने एक बड़े level पे ला चुके हैं that in packaging we are the biggest exporters in Pakistan. So it's a challenge for me to take it to another level, to take it to another step, or it's a big challenge. But any 1-2 जो आपने learn किया अपने father से? जो learn किया बहुत सारी चीज़ें हैं. Planning and how to delegate the responsibilities to my team, and accountability is very important with the delegation. अगर मैंने किसी को डेलीगेट कर दिया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं किसी को डेलीगेट भी करूं एंड देन ही इज़ अकाउंटेबल ऑल्सो, कि वो अपनी परफॉर्मेंस मुझे शो करे. सो डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक अकेला बंदा पूरी फैक्ट्री नहीं चला सकता. यू शुड हैव अ टीम, और वो टीम जो है उस टीम की अकाउंटेबिलिटी आपकी ज़िम्मेदारी है. तो माशाल्लाह सर, जैसे ये आपकी वर्क की 24/7 की डिमांड है, फैक्ट्रीज वर्किंग, और काफ़ी क्लाइंट्स की डिमांड भी होती है, तो कैसे हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर पाते हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया ना, इफ़ यू हैव अ गुड टीम आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है. वो इस तरह के मैं सुबह आता हूँ, मेरे पास लास्ट डे की रिपोर्ट्स होती हैं, आई डिस्कस विद माई टीम, फिर हम 1 घंटा लगाते हैं. हम आज की और कल की इनिशियल प्लानिंग, आज की तो फुल प्लानिंग 1 दिन पहले हो चुकी होती है, हम अगले दिन की भी प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसकी रिपोर्ट्स मुझे मिल रही होती हैं. तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को फुल अथॉरिटी दी हुई है. प्लानिंग वो करते हैं. आई क्रॉस चेक कि यार जो प्लानिंग की हुई थी वो सही थी नहीं थी, और उस प्लानिंग के ऊपर कितना उसका आउटपुट आ रहा है. कोई भी क्लाइंट हो, मैं उनसे पर्सनल फीडबैक्स भी लेता रहता हूँ. आई टॉक टू देम रेगुलरली कि क्लाइंट को किसी लेवल पे मसला ना रहो. लेकिन बीइंग अ CEO आई कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस. वो मेरी टीम ने ही हैंडल करने हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने अपनी सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की हुई हैं. एंड आई डू नॉट इंटरफेयर इन माई एम्प्लॉयज़. यू कैन से जो भी उनका काम है उसके अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं होता until and unless they are doing something very wrong. समटाइम्स आप वो नुकसान उठा के भी सीखते हैं. तो इट्स गुड कि आप उनको ओपन हैंड दें, लेट देम वर्क एंड देन यू कैन रिफाइन देयर वर्क. सर, लास्ट 2 क्वेश्चन सर. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, so how Afeef Rashid manages stress? देखिए, स्ट्रेस ऑब्वियसली आप एक इंडस्ट्री में है, स्पेशली आज के ज़माने में जब इन्फ्लेशन है, अनस्टेबिलिटी है, एक माहौल में मायूसी है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है. सो यू आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि यार सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, आगे क्या होगा. तो आई पर्सनली प्ले बैडमिंटन 5 days a week. तो एक फिजिकल एक्सर्शन होती है. व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम यू फॉरगेट ऑल अबाउट योर टेंशंस. आपको होता है यार मैंने पॉइंट लेना है, आई हैव टू विन. तो फिजिकल एक्सर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर माइंड ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस दैट यू आर फेसिंग ड्यूरिंग द डे. और इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है स्ट्रेस रिलीफ का. वाह वाह, माशाल्लाह. तो सर, गुस्सा आता है आपको, और अगर आ जाए तो कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा कम आता है? गुस्सा शुरू में जब थोड़े इमेच्योर थे उस वक्त बहुत जल्दी आ जाता था. अब गुस्सा आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज फॉर अ गुड लीडर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. तो
मुझे टाइम लगा इस चीज़ को एनालाइज करने में और समझने में कि फ़ौरन ही हाइपर हो जाना इज़ नो सोल्यूशन. यू हैव टू स्पीक टू द पर्सन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, क्यों गलती हुई, किस लिए गलती हुई. रेपिटेटिव गलती है ओके, तो इंस्टेड ऑफ मी टेकिंग टेंशन, तो मेरा ये होता है कि अगर एक बंदे से रेपिटेटिव गलती हो रही है, ही इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, आई लेट हिम गो एंड आई हायर अ पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट इनफ जो मुझे ये टेंशन ना दे, कि मुझे बार बार गुस्सा ना आए. तो गुस्सा एक नेचर है, बट यू हैव टू कंट्रोल इट फॉर योर ओन हेल्थ. बेटर है कि हम इसको जितना कंट्रोल करें बेहतर है. और यही है कि इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा है कि आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, तो आपका एक सोशल सर्कल हो, उसके अंदर आप जाके भूल जाएं कि यार ऑफिस में क्या टेंशनें थी या क्या इश्यूज थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काम योरसेल्फ डाउन. ओके माशाल्लाह. सर सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं आप? सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस को डिफाइन करेंगे सेटिस्फैक्शन से. हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर डेली लाइफ? आर यू सेटिस्फाइड कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो खुश हैं, और मेरी ग्रोथ हो रही है. सिर्फ ग्रोथ इन फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है, पर्सनल ग्रोथ भी है, दैट सक्सेस. बट अगर मैं हर वक्त ही टेंशन में हूँ और आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो वो फिर सक्सेस नहीं है, चाहे आपके फाइनेंशियल्स कितने भी ऊपर जा रहे हो. तो सक्सेस इज़, आई थिंक आपकी पर्सनल सक्सेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है along with your financial success. तो माशाल्लाह सर आपके चेहरे पे एक ख़ास स्माइल रहती है, जैसे एज फ्रॉम योर फादर. तो क्या सीक्रेट है स्माइल का या हैप्पीनेस का? स्माइल का कम से कम स्ट्रेस लेना है. व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, आपको जो है ना वो लॉसेस से डर जो है ना वो थोड़े अरसे में निकल जाता है कि यार इस चीज़ से लॉस हो जाएगा या उस चीज़ से लॉस हो जाएगा. तो a lot of my friends who are जो जॉब में है, उनको ये होता है कि यार ये इतना लॉस हो गया तो वो इतना लॉस हो गया. मतलब हम इम्यून हो जाते हैं लॉस कर करके, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम दोज लॉसेज एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम वो दोबारा ना करें. तो पॉजिटिव रहने, लाइफ को एंजॉय करने. 6 o'clock आई गो बैक होम, आई डू नॉट डू एनी बिजनेस. तो 9 to 6 जितना मुझे काम करना है मैं करूँगा. उसके बाद आई हैव फैमिली लाइफ, माई सोशल लाइफ, मेरा खेलने का टाइम है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्क लाइफ को बैलेंस रखें. सिर्फ काम करना इज़ नो ऑब्जेक्टिव. आई वोंट कॉल इट ए सक्सेस. अगर आप दिन में जो है वो 12 घंटे 14 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बैठे हैं, आई डू नॉट टेक दैट एज ए सक्सेस. वो आप जो बंदा 4 घंटे ऑफिस जाता है और वो उतना ही काम उतने टाइम में कर लेता है और डेलीगेट करके करता है, तो दैट्स मोर सक्सेस. तो अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस में रखें तो इंसान के लिए पॉजिटिविटी रहती है. तो सर योर फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन वो मेनली डिपेंड कर रहा है तो मूड पे. आपको काम और क्वाइट उसमें जाना है तो यू कैन गो टू यूरोप, और अगर आपको फास्ट लाइफ देखनी है तो यू कैन गो टू यूएस. ट्रैवलिंग में आई हैव लर्नड अ लॉट व्हाइल ट्रैवलिंग. जापान वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस आई वेंट. जो उनकी उधर मैंने देखा लोगों में, हाउ काम दे वर, हाउ प्रिसाइज दे वर. छोटी छोटी परफेक्ट, मतलब दे आर परफेक्शनिस्ट. छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे काम कर रहे हैं. उनका ट्रेन सिस्टम इज़ फिनोमिनल. सेकंड्स के ऊपर उनकी ट्रेनों के स्केड्यूल चल रहे होते हैं. तो इट डिपेंड्स मेजरली कि आपका उस वक्त रिलैक्स होने का क्या मूड है. आप दोस्तों के साथ जा रहे होंगे तो अलग डेस्टिनेशंस अच्छी होती हैं, फैमिली के साथ अलग डेस्टिनेशंस हैं. तो इट्स डिफरेंट. आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन सिंगल लोकेशन, बट देयर आर मेनी प्लेसेस. जैसे माशाल्लाह एवरीबडी नोज कि अफीज़ आर फेमस फ्रॉम देयर, जो आप होस्ट, वेरी गुड होस्ट इन कराची. माशाल्लाह कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है आपके घर में. तो आपका फेवरेट खाना कौन सा? मेरा फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट खाना कौन सा है? मुझे सारे खाने पसंद हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं इस पॉइंट पे कि मेरा फेवरेट खाना कौन सा है. अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड के जो चाहिए होता है वो मिल जाता है. तो आई थिंक वी डू नॉट थैंक इनफ अल्लाह फॉर दैट. बट कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट मैं नहीं कर पाऊँगा कि दिस इज़ माई फेवरेट फूड. तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि कोई मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म टू द यूथ, क्योंकि थोड़ा सा एक होपलेसनेस है, जिस तरह कि आज जॉबलेसनेस का माहौल चल रहा है और काफ़ी मायूसी है पाकिस्तान की जो यूथ में. तो क्या मैसेज ऑफ होप देना चाहेंगे हम? देखिए, नो डाउट इस वक्त इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम जिससे पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है.
स्पेशली पाकिस्तान, इट्स बीन अनप्रेसिडेंटेड टाइम. जितना हम इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में चेंजेस आ रही हैं, जितनी इन्फ्लेशन है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन. मैं कोई एक इंडस्ट्री भी पिन पॉइंट नहीं कर सकता इस वक्त जो बोले कि यार नो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस सिनेरियो ऑफ द कंट्री. तो इंशाल्लाह हम बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं पाकिस्तान. इंशाल्लाह दिस विल ऑल्सो पास, दिस शैल ऑल्सो पास. पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है. लॉयल्टी और इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो यंग आवाम है जो जॉब्स के लिए देख रही है, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि जॉब स्टार्ट करने से पहले उनकी बहुत डिमांड्स होती हैं. आई पर्सनली बिलीव कि आप पहले परफॉर्म करो, मेक योर सेल्फ, मेक दैट कंपनी डिपेंडेंट ऑन यू, और फिर आप उनसे कोई डिमांड करोगे तो दैट विल बी जस्टिफाइड कि यार ओके दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं इसकी डिमांड्स पूरी भी करूँ. पर आप आने से पहले आपकी डिमांड्स हों तो वो इट डज़ नॉट गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी इंटरव्यूअर. सेकेंडली ये है कि हमें एज अ नेशन अपने आप को बहुत बदलना होगा. हमें पॉजिटिव सोर्स की तरफ आना होगा. हमें एज अ नेशन बहुत चेंज होने की ज़रूरत है. जो आजकल के मुश्किल हालात हैं इसमें गवर्नमेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकती. वी एज अ नेशन हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकें. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि लुकिंग एट दी इकोनॉमिक सिनेरियो, हमने अपनी कंपनी में डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग 6 days अ वीक हम 5 दिन वर्क करेंगे और हम 1.5 घंटा पर डे, 1.5 hour पर डे एक्स्ट्रा काम करेंगे. तो जो एक बंदा जो इस वक्त 20,000 25,000 कमा रहा है, उसका डेली का 200 रुपीज़ का अगर पेट्रोल का एक्सपेंस है आने जाने का, अगर हफ्ते में एक दिन भी बचता है तो उसके 800,000 रुपये बच रहे हैं. तो 20,000 कमाने वाले के लिए 800,000 रुपये की बड़ी वैल्यू है. उसके साथ साथ हम अपने मुल्क की जो ऑयल रिजर्व्स, जो हमारे ऑयल की इतनी बड़ी एक्सपेंडिचर है, हम उसको पुल डाउन कर सकते हैं. तो आई बिलीव कि अगर गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं ले रही, हम पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ऐसे इनिशिएटिव्स लें और हम एज ए नेशन सोचें कि हम अभी तक क्या कर रहे थे गलत, कि अब हम वो ना करें तो हमारा मुल्क एक बेहतरी उसकी तरफ आ जाए. हम जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे, हम पॉलिटिशियंस को सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता. थैंक यू अफीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपसे. और हमने आज जो स्पेशली मैंने जो इस इंटरव्यू से 2 चीज़ें टेक अवे की. एक बड़ी मज़ेदार उनकी बात है कि हम फियर नहीं है लॉस है, क्योंकि हम लोग इम्यून हो चुके हैं एज एंटरप्रेन्योर. तो वो इसलिए ये काफ़ी की लर्निंग है हमारे लिए. और दूसरा जैसे उन्होंने कहा प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ द टीम, वो बेसिकली जो सक्सेस है डिपेंड होता है इन 2 थिंग, प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ थिंग. तो अब ये माशाल्लाह ये आप जो इंटरव्यू है वो आप देखिएगा, हमारा जो CEO Today TV है और अफीफ ग्रुप के भी चैनल पर आप ये अपलोड हो जाएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.